I would now request our Guruji to come to the dais and address us. Our chief guest, Sri Patil Sahab, and divine teachers and angel-like children. When I came here, one of the teachers asked me, "Are you Guruji?" See my dress, because I had gone to my village. My mother had expired, so whatever ceremony was to be done, and I was not supposed to come, but Dr. Ghosh told, "Don't know how we will miss it." And it was arranged that I came here. It was destined for me that I came here. Today I was supposed to be in Calcutta, but due to some reason, that reason is Dr. Ghosh. He called me here. You know, every year we are celebrating this Republic Day. But do you think any time that are you celebrating it as a ceremony, or are you thinking what is Republic Day? Mark the word, Republic. There is public. Again, Republic. The reason is that when our country got independence, we are public, free. But how to live in freedom? How to behave? How to follow some rules so that country will go ahead? So Constitution Committee was made, and Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, and all great masters created this constitution, and then made some law and regulations, and introduced, and from that day it was called Republic Day. We have the Republic. But do you think, have you become a republic? Do you follow rules and regulations? 99.9% no. And I am standing in front of the DCP of Pune. The traffic light is red. Still people are just running. I am surprised. When you go to other countries, Rina has come from USA, and most of the times I go there, red light means red light. Everybody will stop there. Even there is crossing, even there is no red light, people will stand, see left and right, and don't then go ahead. But in what way we have become republic? We are not following the law, and they are destined that they would not follow the law. Irreparable. Are we irreparable? Sometimes when I am driving my SUV, when somebody is crossing the law, crossing in red light, many motorcycle cars are going in. One time I thought to dash them somebody, but thing is that if I dash somebody, I am going right in green signal, and red signal somebody is running. If I dash them, then I will be caught. But you have hit him, but mistake is his. So in our country, we are just celebrating Republic Day just a rituals. कुछ काम हो, सत्यनारायण कथा कहवा दो, कथा हो गया। सत्यनारायण कथा हो रही है, कुछ सुनता कौन है? जो पूजा पर बैठा है वो भी नहीं सुन रहा है, और मोबाइल फोन से वहीं बात कर रहा है। पंडित जी के बगल में भी मोबाइल फोन है, पंडित जी कथा कर रहे हैं, उनको मोबाइल लेकर बैठे हैं, मैसेज का आ गया तो वही कथा बंद हो जाती। We are not public at all. We have not been something. Some great change, some shock treatment is required for this country. New generation is coming. What are they going to be? Earning machine? Are you not going to be human, or are you going to be humanoid? Most of the parents of this country are making their children humanoids. Just a program person to earn some money and get a good family, and then teach the children and die and go. BA किया, नौकर बना, पेंशन मिली, फिर मर गया. Dr. Iqbal had told like this.
Today, luckily, when I was in school, our Pradhanadhyapak headmaster was Sri Ranjit Singh. I remember him. His grandson is here with us. He is sitting there, Bimal ji. When I was in school, I went to my headmaster and I told him, sir, हम तांगा का घोड़ा बनना नहीं चाहते हैं. तो तांगा घोड़ा समझे क्या क्या कर रहे हो? तांगा का घोड़ा मतलब कि स्कूल में बच्चों को ये सिलेबस है, ये ट्रेन किया जाता है कि टीचर अपना सिलेबस पूरा कर दिया और वो कोर्स पास कर लिया, उसको मार्क्स आ गया और पास हुआ, उसके बाद नौकरी मिल गई. अब परिवार को तांगे में बैठाकर घोड़ा की तरह खींच रहा है, उसको खिला पिला कर बच्चों को सबको रिलेटिव को बड़ा किया. और तांगा के घोड़ा से कोई खुश नहीं होता है, पता है आपको? जितने तांगा पर सवार होते हैं लोग, वो बोलते हैं थोड़ा और तेज चलाओ ना. तांगा वाला कोड़ा मारता है, और तेज चलाओ ना. क्या हम सभी तांगे के घोड़े नहीं हैं? कितना भी कमा के लाओ, परिवार में बोलते हैं कम दिया, और बढ़ाओ ना थोड़ा इनकम. तो क्या करेगा? पत्नी बोलेगी देखो पड़ोसी को कितना कमा रहा है, तुम क्या हो? उसके पास होम थिएटर है, तेरे पास छोटा टीवी है. अब घोड़ा कितना दौड़ेगा? वो एक कोड़ा. इस तरह बेचारा करते करते वो गलत ढंग से पैसा कमाने लगता है. हमने अपने हेडमास्टर से कहा कि सर, मैं तांगा का घोड़ा नहीं बनना चाहता हूं. तो उन्होंने शुरू में तो उनको लगा, बाद में उन्होंने हमको गाइड करना शुरू कर दिया अलग से. स्कूल के बाद हमको पढ़ाते थे, गाइड करते थे, एक्सरसाइज करना, योगा करना, और स्कूल के सामने फील्ड था, हम डॉक्टर भाई वहाँ दौड़ा करते थे. एंड slowly it changed. And I was one of the toppers of the school. He was so proud, and he still he guided. When I was in college also, he was guiding me many times. And he told how to behave. Even now he is no more, but by remembering him, we follow discipline. Discipline means he has to follow discipline. हम अपने देश की जड़ को, अपनी रूट को भूल चुके हैं. इसलिए मैं तो अभी पूरे वर्ल्ड में, सारे कॉन्टिनेंट में मैं जाता रहता हूँ. हर 1-2 महीने पर कभी यूरोप, ऑल 5 continents I am moving. And where I see that people are very interested to go in deep into Indian culture. You will be surprised when I was in Barbados in November, and all Africans from there, they want to follow our tradition. One African came and started singing bhajan in Hindi. Anyway, we teach our children, Baba, black sheep, have you any wool? And he becomes a black sheep one day. Black sheep means more wool, more money. What for? Now we have to go to the root and understand the main teaching of our ancient rishis. We don't have time to go to read an Indian essay, but at least we can read the Gita. Gita is available everywhere in the cheapest price. And every Sunday Tata Ghosh is talking Gita. What Krishna is telling? Hato va praptya swargam jitva va bhakshase mahim tasmat utistha kaunteya युद्धा एकृत निश्चय. अगर मर जाओगे युद्ध में तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीतोगे तो पृथ्वी का राज भोगोगे. इसलिए उठो, युद्ध के तैयार हो. तो कैसे बताते हैं, सोचिए. ये नहीं बोलते हैं हार जाओगे तो क्या होगा. अपने बच्चों को क्या कहते हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो रिक्शा चलाओगे. इन नहीं की प्रवृत्ति को छोड़ देना है. कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि हारोगे तो ये होगा, जीतोगे. वो बोले हम मरोगे या जीतोगे, 2 ही ऑप्शन दिया है. कृष्ण ने गीता में 2 ऑप्शन दिया है, चाहे मर जाना है चाहे जीत जाना है. हारने की बात ही नहीं कही. और हारने की बात कहे होते तो अर्जुन बोलता है कि हमको हारने दीजिए, परंतु हम लड़ेंगे नहीं. चाहते नहीं, गेट अप. सो हैव टू गेट अप वन डे. ओनली देन यू विल रीच. व्हाट इज द वर्क ऑफ टीचर? टीचर का काम क्या है? ये कोर्स पढ़ा दिया, मार्क्स लड़का पास कर गया, A ग्रेड मिल गया, IIT में IIM में चला गया, IPS IAS बन गया, इंजीनियर डॉक्टर बन गया. क्या इतना ही उद्देश्य है जीवन का? फर्स्ट ही हैज टू बी ए ह्यूमन बीइंग, एंड ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन.
एवरीबडी इज हैविंग एवरीथिंग एपेक्टिव इन हिज बॉडी, बिकॉज हम पूर्ण से आए हैं, हम परमात्मा से आए हुए हैं, परमात्मा पूर्ण है। सो हमारा एक उपनिषद है दैट इज कॉल्ड ईशाश्व उपनिषद, उसका प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक एक ही है। ओम, आपने सुना होगा, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो भी पूर्ण है या ये भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया तो पूर्ण बच जाता है। मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग, 100 minus 100 is 0, but here 100 minus 100 is 100. हाउ? हमारे ऋषि कहते हैं एक दिया जल रहा है, एक दीपक जल रहा है और दूसरा बिना जला हुआ दीपक ले जाते हैं, उस दिए में लगाते हैं, ये भी जलने लगता है, तो क्या पहले दीपक का जो रोशनी है कम होती है? उसका लॉ उतना ही चल रहा है। ऐसे हजारों दीपक जलते हैं और पहले की रोशनी वैसे ही रहती है। वैसे परमात्मा से हम आए हैं, हम भी पूर्ण हैं। और उस पूर्णता में मैथमेटिशियन भी है, साइंटिस्ट भी है, मेडिकल डॉक्टर भी है, पुलिस अफसर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, मिनिस्टर भी है, हर आदमी के अंदर सारी क्षमता है। और टीचर किसको उभार दे, इस पर डिपेंड करता है। उसको कैसे निकाल दे, उसको उभार कर निकाल देना टीचर का काम है। उसके पास सब कुछ है, उसको अरेंज करना है, हाउ टू अरेंज इट। हमने एक सूफी कहानी आपको सुनाता हूं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस एंड एवरीबॉडी। एक गुरु था, सूफी गुरु, उसके पास 17 ऊंट थे, 17 कैमल्स, ही वाज हैविंग 17 कैमल्स। जब वो मरने लगा तो अपने शिष्य को बोला, शिष्यों को, कि मैं मरता हूं तो आधा नंबर 1 को दे देना और 1/3 नंबर 2 को दे देना और 1/9 नंबर 3 को दे देना, मानोगे ना? अब गुरु मर रहा है, हाँ मानेंगे मानेंगे, मर गया था। तो सब लोग उसको दफनाने के बाद जब आए तो कहा, गुरु ने कहा कि बंटवारा किया जाए, ऊंटों का बंटवारा किया जाए, आधा 17 का आधा कैसे करेंगे? 8.5 तो कर नहीं सकते हैं, कैन किल एनी कैमल। 1/3 कैसे करेंगे? वो भी नहीं होगा, फिर भी नहीं जम रहा है। 1/9 कैसे करेंगे? वो भी नहीं हो सकेगा। सारे का सारे दिमाग फेल कर गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु का गुरु भाई है, उसके पास चलो, वो गाइड कर सकता है। तो सब वहां पहुंचे तो उस गुरु ने कहा कि हमें मालूम था तुम लोग मेरे पास आओगे, कि मेरा गुरु भाई ऐसा थोड़े मरेगा, मरते समय भी कुछ सिखा के जाएगा, तुम लोग आओगे, हमको पता है। तो कहा कि प्रॉब्लम क्या है? कहा कि 17 ऊंट है, आधा बांटना है, हम कैसे करें? 1/3 करना है, कैसे करें? 1/9 करना है, कैसे करें? तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल। जितने मैथमेटिक्स के टीचर आप सोचिए कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं x मिलाया, सपोज इट इज x। तो उसने कहा कि मेरे पास 1 ऊंट है, हम 17 में 1 मिला दिया, 18 हो गया। 18 का आधा 9 तुम ले लो, 1/3 18 का 1/3 6 तुम ले लो, 18 का 9वां भाग 2 तुम ले लो, जोड़ो कितना हुआ? 9 + 6 + 2 17। मेरा 1 ऊंट बच गया। दिस वाज द मैथमेटिक्स। टीचर आपके अंदर जो शक्तियों को सेट कर देता है, जैसे सेट होगा टीचर का ज्यों का त्यों है और आप बन जाते हो। उस मोटो को लेकर चलना पड़ेगा, उस सत्य को लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम मनुष्य हो सकेंगे। ये जीवन खाली पैसा कमाने के लिए, पोस्ट लेने के लिए नहीं है। विक्टोरियस के इस स्कूल में हम लोग बच्चों को खाली मनी मेकिंग मशीन बनाने के लिए नहीं खोले हैं। वी आर हियर टू मेक ए ह्यूमन बीइंग, एंड वन डे इफ यू फॉलो दैट प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, strength and strength, set your own mind day and night, I am strong and pure, no sin in me and no misery at all. Today as the law of attraction some theory has come, never think negative. I will do it. If I don't do, then what will happen? नहीं होगा। सोचोगे ट्रेन छूटेगा तो क्या होगा? तो ट्रेन छूट जाएगा। हम बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा? हमको कैंसर होगा तो क्या होगा? तो कैंसर हो जाएगा। कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी स्वस्थ रहेंगे, एंड आत्मबल विल कम,
this self force will come, and then you will be able, and then you follow the path of truth. And then Swami Vivekananda told truth, sincerity, integrity and loyalty, wherever these are, there is no power above and below the sun to crush that man. So follow that our ancient treaty and go ahead. Thank you very much. God bless you. Thank you so much, Guruji, for your influential message to our audience.